السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں تک اپنے کلام کی آواز کو پہنچانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، آنے والوں کے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے، بیٹھنے والوں کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دے۔ جو بھی اللہ کے کلام کو غور سے سن رہے ہیں، اللہ تو انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم 8ویں پارے کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ سے کل بھی کہی تھی کہ سورہ انعام ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ نے بہت زیادہ انسان اور جنات کے مل کے کام کرنے کے انداز کو بتایا ہے۔ وہ کیسے کام ہے، وہ کون سے کام ہیں، وہ کام کرنے کے کون سے طریقے ہیں جن کو انسان اور جنات دونوں مل کے کرتے ہیں اور مل کے کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اور آخر ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ایک اللہ کے کلام کی طرف آنے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے بھی نہیں۔ اسی کے بارے میں آپ کے سامنے آج وہی طریقے لے کے آئی ہوں۔ 8ویں پارے میں اللہ کہتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اگر یہ آیت کا مطلب سمجھنے بیٹھے، شاید اللہ کی قسم ہماری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کے لیے جنات اور انسان دونوں میں سے دشمن بنا دیے، اور دوسری اور سب سے زیادہ غور کرنے والی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یوحی بعضهم الی بعض، یہ جنات یہ انسان ایک دوسرے کے دل کو پیغام بھیجتے ہیں۔ برے انسان برے جنات کو دل کو پیغام بھیجتے ہیں۔ کیسی باتوں کا پیغام؟ خود اللہ کہہ رہا ہے، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں، بناوٹی انداز اور دھوکے والی باتیں۔ اے نبی تو ان کو اور ان کی بنی ہوئی جھوٹی باتوں کو سب کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ دو۔ اکثر جگہ انعام کے اندر جنات اور شیطان کا بڑا ذکر آیا ہے۔ کیسے آج وہی دونوں کی ملی بھگت ہم سنیں گے انشاءاللہ غور سے کہ آخر کیا ہے یہ جنات اور انسان۔ میری ماں اور بہنوں، اگر قرآن کی یہ آیت کو آپ غور سے پڑھیں 8ویں پارے کی، اور ایک بار پڑھو، ایک بات آپ کو خود کو سمجھ میں آئے گی، برے ہونے کے لیے نہ جن یا انسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ برا انسان بس برا ہے، برا ہوتا ہے، چاہے اس کا جسم مٹی سے بنا ہو، چاہے اس کا جسم آگ سے بنا ہو، برا ہی ہوتا ہے۔ بولا اللہ تعالیٰ، چاہے وہ مٹی سے بنا ہو، چاہے آگ سے بنا ہو، دل اگر کسی کا برا ہے، بغاوت پہ آمادہ ہے شریعت سے، تو وہ وہی ہے جو
जिन्नात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है ना। ख्यालात, सोच, मकसद, क्या जिन्नात क्या इंसान, सबका एक है, वो अल्लाह ताला एक है। और आगे अल्लाह कहता है एक नबी के लिए हमने दोनों में से दुश्मन बना दिए, जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी। अब नबी एक रोल मॉडल होता है, सारे लोग नबी को फॉलो करते हैं अल्लाह के। कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी शैतानों का मुकाबला किया, आओ जरा इस बात को गौर से समझते हैं, गौर से समझते हैं। मेरी माँ और बहनों, जब इस्लाम आया, जरा गौर से देखो उस वक्त मक्का की गलियां कैसी थी। चारों तरफ मक्का की गलियों में, हर घर में बुत ही बुत, शिर्क ही शिर्क। यहां तक के खाना काबा के अंदर भी 360 बुत, एक दिन के हिसाब से साल के 360 दिन और 360 दिन के हिसाब से 360 इनके बुत। सूरज के हिसाब से 365 दिन होते हैं, चांद के हिसाब से 360 दिन होते हैं एक साल के अंदर। काबा की छत पे सबसे बड़ा बुत था, हुबुल नाम था इसका, हुबुल। और सफा पे एक बुत, मरवा पे एक बुत, चारों तरफ बुत। और ये लोग दावा ये करते थे कि हम सुन्नत इब्राहिमी को मानने वाले हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने वाले हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जितनी जगह कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, बार बार कहता है ऐ लोगों, वमा काना मिनल मुशरिकीन, वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम मुशरिकीन में से नहीं थे। इतने बुतों की पूजा करके तुम कहते हो हम दीन इब्राहिमी को फॉलो करने वाले। अल्लाह अकबर। पानी से ज्यादा शराब पी जाती, पानी तो होता ही नहीं था लोगों के पास, शराब उससे कहीं ज्यादा। एक आदमी जितने चाहे शादियां करता, 2, 3, 5, 8, 10, 20, जितने मर्जी, जितनी औरतें पसंद आ रही सबसे चाहे शादी कर ले। बेटे होते रख लेता, बेटियां होती जिंदा दफन कर देता। ये मक्का का माहौल कुरान बता रहा है, ये माहौल था मक्का का। जो जबरदस्त है, जो ताकतवर है, वो कमजोर को दबा के रख रहा है। ऐसे माहौल में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं तौहीद का नारा लेके, सारे लोगों को, जो मक्का के शैतान नुमा इंसान थे, उनको ये दावत हरगिज पसंद नहीं आई। शिर्क के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, मोहब्बतों के खिलाफ, औलाद के खिलाफ, ये दावत मक्का के शैतानों को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला कहता है हमने नबी के लिए शैतान कटो। क्यों कट हो रहा है? ये कल भी 2 बार कट हुआ बोलते, तीसरी बार जब आया। अब यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने इंसानी दुश्मन थे, वो सारे के सारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं कि ऐ नबी, ये दावत हम इसको हरगिज आम करने की इजाजत नहीं देंगे, नहीं देंगे। हर एक के दुश्मनी करने का अंदाज अलग अलग था, और उसी अंदाज को कुरान ने 8वें पारे में बयान किया है। अगर कोई इस्लाम का दुश्मन है और तुम्हें किस अंदाज से सताता है, तो समझ जाओ ये इंसानी शैतान है।
शैतान होने की आग से बनने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान शैतान बनने के लिए काफी है, बोला अल्लाह ताला। क्या काफी है? आपको बताऊं तो अलग अलग क्या आजमाइशें थी जब मक्का की गलियों में इस्लाम शुरू होता है। क्या खबाब, क्या बिलाल, क्या यासिर, क्या सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हुम, एक से बढ़कर एक कड़ी आजमाइशों का दौर शुरू हो गया। दूसरी बात ये हमेशा याद रखना, जब भी बात होती है शैतान की, कई सालों से आप देखते आ रहे हैं, लाइट जाती है, माइक खराब होते रहता है। सोचो यहाँ आजू बाजू कितने होंगे, या तो फिर शैतान इतनी गहरी नींद सुला देता है, इतनी गहरी नींद 2 घंटे लेटो तो नहीं आएगी बिस्तर पे, जितनी गहरी नींद उस वक्त आएगी जब मेन टॉपिक चल रहा होगा। शैतान बाकायदा थपकी दे के सुलाएगा, हमारे कानों तक वो बात पहुंचने नहीं देगा जो पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी था, है ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि मक्का की गलियों में उस वक्त इस्लाम फैला जब शराब पानी की तरह पी जा रही थी, जब आदमी की कोई लिमिट, कोई मर्यादा, कोई तमीज, कोई तहजीब नाम की चीज नहीं थी। बच्चे पैदा होते, अगर बेटा होता रख लेते, बेटी होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। अगर कोई पैसे वाला है तो फिर वो लौंडियां खरीद लेता जो सारी रात इसके लिए नाचती गाती, शराब पिलाती, इसका दिल बहलाती, और इसी को ये लोग बहुत बेहतरीन जिंदगी समझ रहे थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत लेके खड़े होते हैं, तौहीद का नारा, एक अल्लाह का नारा कुफारे मक्का को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतने दुश्मन खड़े हो गए चारों तरफ से, किसी शैतान की क्या जरूरत, ये इंसानी शैतान थे जो इस्लाम से रोक रहे थे, बोलता अल्लाह ताला। क्या थे वो शैतान? हर एक के रोकने का तरीका देखो अलग अलग था। आओ मैं कुछ 1-2 तरीके आपको बता के आगे बढ़ जाओ। कैसा था, है ना? हर एक आदमी था, इसका नाम था नजर बिन हारिस। नजर बिन हारिस का किस्सा बड़ा मशहूर है इस्लाम के अंदर। ये अरब के लोगों से कहता है, ऐ कुरैशियों, ऐ अरब के लोगों, तुम पर एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी आफत मंडला रही है जिसका तोड़ तुम अभी तक नहीं पेश कर सकते। नाउज़ बिल्लाह, वो आफत, वो मुसीबत किसको कह रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। भाई महफिल में खड़ा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करता है कि ऐ कुरैश के लोगों, याद करो जब मोहम्मद जवान थे, तुम्हारे पसंदीदा शख्सियत थे, तुम्हारे हीरो थे, और जब मोहम्मद बूढ़े हो गए, कनपट्टियों से सफेद बाल दिखाई देने लगे, और जब मोहम्मद ने ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, तुम खड़े हो गए मोहम्मद की दुश्मनी के लिए। ये कौन सी मुसीबत है? ये मोहम्मद, ये इस्लाम का जादू आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐ कुरैश के लोगों, मैंने देखे हैं बड़े बड़े जादूगर, उनकी उल्टी सीधे फूंक झाड़ फूंक, मोहम्मद जादूगर भी नहीं लगता है। मैंने देखा बहुत सारे नजूमियों को उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, लोगों को भविष्यवाणी बताते हुए, लेकिन मोहम्मद नजूमी भी नहीं लगते। मैंने देखा पागलों को
समझ के बाहर है। फिर नजर बिन हारिस गया, एक दूर दराज एक मुल्क था, उसका नाम था हीरा। वहां हो गया और वहां से इसने बादशाहों के वाकयात सीखे, असफंदियार और रुस्तम के किस्से सीखे। और ये आया मक्का हीरा से। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके इस्लाम की दावत देते, सेम उसी जगह पे अल्लाह के रसूल के खड़े होता और असफंदियार के और रुस्तम बादशाह के किस्से सुनाता था और पूछता था लोगों से, बोलो ए लोगों, क्या मेरे किस्से बेहतर हैं या मोहम्मद जो किस्से पेश करता है बार बार वही किस्से, वो बेहतर है? जरा बताओ तो। अल्लाह ताला सख्त धमकी दे रहा है यहाँ पे नजर बिन हारिस के लिए। और तो और बताओ नजर बिन हारिस ने क्या चाल चली। आज से 1500 साल पहले जो ख्याल नजर बिन हारिस का था, वही ख्याल हर दुश्मन इस्लाम का है। जरा देखो नजर बिन हारिस ने क्या चाल चली थी। इसने लौंडियां पाल रखी थी। अगर किसी के बारे में शक होता कि ये मोहम्मद की तरफ माइल हो रहा है, मोहम्मद के दीन की तरफ इसका झुकाव हो रहा है, अब वो लौंडी उसके पीछे लगा देता, अब वो लौंडी उसको नाच गाना मस्ती में ऐसा उलझाए रखती, उसको खिलाती, उसको पिलाती, उसके सामने नाच गाने की रंगीनियां पेश करती, यहाँ तक के इस्लाम से उसका दिल हट जाता। उसको लगता कि यही तो जिंदगी है असल में, जवानी, नाच गाना, लौंडी, शराब, जिना, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, और क्या चाहिए? ये आज से नहीं, आज से नहीं। आपको पता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतेह किया था, यहूदियों ने उस वक्त कसम खाई थी, कसम है आज के बाद तुम्हारे अंदर एक भी मां ऐसी हम नहीं रहने देंगे जो एक और सलाहुद्दीन को पैदा कर सके। एक और सलाहुद्दीन को पैदा करने वाली मां हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे बीच में। और देख लो क्या आज उनकी कसम पूरी हो गई। आज कोई मां ऐसी नहीं बची है शर्म हया वाली जो सलाहुद्दीन अय्यूबी, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, महमूद गजनवी या हमारे सहाबा इकराम हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबियात को जन्म दे सके, वैसे बहादुरों को जन्म दे सके, कहां बची है हमारी माएं? बता दो। कसम खाई थी एक भी मां ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो एक और सलाहुद्दीन को जन्म दे सके। कैसे उन्होंने पूरा किया अपना ये टारगेट? वही जो आज से 1000 साल, 1500 साल पहले नजर ने किया था। एक लौंडी इस पे मुसल्लत कर दो, इसके पीछे लगा दो, सारी रात नाच गाने में मसरूफ कर दो नौजवानों को। ना फिर माँ रहेगी, ना बेटा रहेगा, ना जवानी रहेगी। यही कुछ किया था नजर बिन हारिस ने। आज भी वही है। माँ अलग टिकटॉकर है, बेटे अलग टिकटॉकर है। बेटियां का तो पूछो ही मत। सारी रात जागते गुजर जाती है, आधा दिन सोते गुजर जाता है। जिसको भूख लगी वो 2 अंडे उबाल लेता है या मैगी बना लेता है। बस चल रही है जिंदगी की गाड़ी। अजान सुनाई दी, कानों तक सुनाई दी, लेकिन किसी की हिम्मत भी नहीं हुई नमाज को जाने की। अल्लाह अकबर। ये हमारी जिंदगी है। ये तो था बाहर की हालत नजर बिन हारिस की। बाकायदा मुकाबला लगा लिया कि जितना अच्छा अल्लाह के रसूल बोलेंगे उससे अच्छा मैं बोलने की कोशिश करूंगा। अब जा के किससे कहानियां सीख के आ रहा है।
ये इंसानी शैतान बुरा अल्लाह था, जो इस्लाम की राह में आपसे मुकाबला लगा ले, वो इंसानी शैतान, शैतान का जिक्र चल रहा है ना। अब पड़ोसी सबसे बड़ा शैतान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ, पड़ोसियों की भी क्या अहमियत है, देखो क्या अंदाज थे सताने के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर वाले पड़ोसी के बारे में हम बात करेंगे, अबू लहब की। अभी इधर वाला पड़ोसी अबू जहल, उसकी बात बाद में होगी इंशाअल्लाह। पहला दिन था इस्लाम की दावत का, पहला दिन, बस पहले दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे चढ़ा और कहा, ऐ लोगों, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी की बात समझ में नहीं आई कि आखिर मोहम्मद क्या बोलता है, उसकी बात का जवाब क्या देना है, लेकिन अबू लहब को सबसे पहले समझ में आ गया। अबू लहब सबसे पहले आगे बढ़ता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और कहता है, मोहम्मद अभी इससे तुझे मारूंगा। पहला पत्थर उठाने वाला, पहला दुश्मनी का ऐलान करने वाला कोई और नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी लगता था और पड़ोसी भी था, पड़ोसी भी था। पड़ोसियों की दुश्मनी अलग है, देख लो। कभी कभार तो हांडी चढ़ती थी चूल्हे पे, रोज रोज तो खाना पकता भी नहीं था अल्लाह के रसूल के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूल्हे पे हांडी चढ़ी है, पक रही है, और ये अबू लहब निशाना लगा के गंदी बच्चेदानी जानवर की हांडी में फेंक देता। अब उस जमाने में ऐसे बाउंड्री वॉल, गेट तो थे नहीं, खुले खुले घर होते थे। गंदगी ऐसे हांडी में फेंकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लकड़ी से गंदगी उठाते और ला के वो गंदगी भी और वो हांडी भी बाहर फेंकते और कहते, ऐ लोगों, ये कैसी हमसायगी है, ये कैसे पड़ोसी है, क्या अल्लाह का डर नहीं है? नमाज न घर में पढ़ सकते, न खाना काबा में नमाज अदा की जा सकती है। इतने दुश्मन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको बताओ, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले अबू लहब के 2 बेटों से अल्लाह के रसूल की 2 बेटियों की शादी हो गई थी, उत्बा और उतैबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम। इधर 2 बेटे अबू लहब के, इधर 2 बेटियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब निकाह पढ़ाने का रिवाज नहीं था, जो रिवाज था उस हिसाब से शादी हो गई थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया, अबू लहब खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, दोनों बेटियों को तलाक दे, दोनों बेटियों को तलाक दिलवा दी। क्यों? जुर्म क्या था? इसलिए कि बाप ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया था और कोई जुर्म नहीं था। ये देखो इंसानी शैतान कैसे होते हैं, जरा देख तो लो। अल्लाह ताला कह रहा है हर नबी के लिए, लिकुल्लि नबिय्यिन जअलना, हर नबी के लिए हमने बना दिया। अब जब नबी के लिए बना दिया तो नबी के फॉलोवर्स के लिए भी ऐसी ही आजमाइशें हैं, कुरान का ऐलान है। सुनते जाओ, सुनते जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटे का इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला का, छोटा सा बच्चा। जब बेटे का इंतकाल हुआ, दौड़ा अबू लहब जा रहा है, खुशी संभाले नहीं संभल रही है अपने साथियों के पास, और जाके कहता है, मेरे साथियों सुनो, मोहम्मद का बेटा मर गया, बेटा मर गया। अभी मैं आपको बताई, बेटियों को जिंदा दफना देते, बेटों को रख लेते, बड़ी अहमियत थी बेटों की।
कायनात का। अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तेरा दुश्मन मैं उसको अबतर बना के रहूंगा। अरे नबी तुम नहीं, बेटा मरा तो क्या हुआ, तुम्हारे नाम को मैं कयामत तक जिंदा रखूंगा, बोला अल्लाह ताला, कयामत तक जिंदा रखूंगा। ये कैसे पड़ोसी है, औलाद हमारी मर गई है, हर खुशी मेरे पड़ोसी को हो रही है। मेरी माँ और बहनों, एक इंसान की जिंदगी में पैदा होने से लेके मौत तक जितनी आजमाइशें आनी है, जितनी मुसीबतें आ सकती है, कोई मुसीबत ऐसी नहीं थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना आई। महबूब बीवी का मौत, औलाद की मौत, बेटियों की तलाक, गुर्बत, यतीमी, भूख, साथियों की मौत, कारोबार में नुकसान, जितने 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 आते हैं मुश्किलात, हर मुश्किल हर तकलीफ अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी। ये दुनिया आसान नहीं है, ये जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ पे जादू भी होगा, कदम कदम पे शैतान भी रोकेंगे, कदम कदम पे बीमारियां भी आएंगी, कभी औलाद की तलाक भी होगी, कभी औलाद की मौत भी होगी, कभी जान से प्यारा साथी दुनिया से रुखसत हो जाएगा अकेला छोड़ के। मेरे बंधु, तुम्हें कैसे रहना है जिंदगी के अंदर। और सुन लो, अगर तुम नबी के फॉलोवर्स हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलते हो, ये सारी तकलीफें तुमको भी आएंगी, तुमको भी आएंगी। हर कदम पे इंसानी शैतान तुमको सताएंगे ही सताएंगे। तलाक कोई आसान बात है क्या? आसान बात तो नहीं है। उस दिल से पूछो, उसके माँ बाप के दिल से जिसकी बेटी बेटा की तलाक हो गई है। सुबह का पता नहीं, रात का पता नहीं, जिंदगी आंसुओं में गुजर जाती है। औलाद की मौत क्या होती है, पूछो उस माँ बाप से जिन्होंने अपनी औलाद को खोया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उस जनाजे का बोझ होता है जो बाप अपने कंधों पर अपनी औलाद का उठाता है। ना हमको ऐसी आजमाइश में मुब्तला मत कर जिसमें हम पूरा ना उतर सके। अल्लाह हमारे औलाद की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ये जिंदगी है, ये आजमाइशें हैं और अल्लाह ताला, ये इंसान नुमा शैतान जब तू खड़ा होगा अल्लाह की बात सुनने के लिए कदम कदम पर, कभी पड़ोसी बनके, कभी बाहर कंपटीशन, कभी घर के अंदर, कभी पड़ोसी, हर जगह मुकाबले ही मुकाबले होंगे। बुरा अल्लाह ताला, अल्लाह हमें इन मुकाबलों पर जमे रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, है ना। अल्लाह ताला आगे बयान कर रहा है इस सूरे के अंदर, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है। ये तो नबी के फॉलोअर्स की बात हो रही है, लेकिन आज मैं आपके सामने सूरे अनाम की खास करके सिर्फ वही बातें लाई हूं जो इंसान और शैतान, शैतान और इंसान मिल मिल के चल रहे हैं, मिल मिल के चल रहे हैं। तकलीफ सिर्फ शैतान नहीं देता, तकलीफ हमारे अपने देते हैं। तकलीफ देने के लिए शैतान हाजिर नहीं होता, हर किसी को शैतान नहीं लगता। तकलीफ हमारा पड़ोसी हमको देता, हमारा रिश्तेदार हमको देता, हमारी औलाद हमको देती, हमारा सगे बहन भाई हमको तकलीफ देते हैं। वही तो कुरान हमसे पेश कर रहा है। आगे अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है ना, उसके दिल को इस्लाम के लिए खोल देता है। ये बात आज गौर से समझो, उसको इस्लाम से मोहब्बत हो जाती है। यशरह सदरहु लिल इस्लाम,
اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اتنا تنگ اتنا تنگ اتنا تنگ کر دیتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان پہ چل رہا ہے۔ برا اللہ تنگ 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 سینے کو کیسے؟ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام چلتا ہے اطاعت کے ذریعے، اطاعت کے بغیر کوئی اسلام ہے ہی نہیں۔ اگر ہم زبانی دعوے کریں ہاں ہم مسلمان ہیں، اسلام سے محبت ہے، لیکن نہ نماز کی عادت ہے، نہ روزے کی طاقت ہے، نہ ہمارے کسی چیز میں اسلام جھلک رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے 8ویں پارے کے اندر ایسا لولا لنگڑا اسلام نہیں چلے گا اللہ کے پاس۔ اللہ کو جس سے محبت ہوگی، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے گا، اسلام پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان اور بہت آسان ہو جائے گا۔ اب ذرا غور سے دیکھ لو، اطاعت کے بغیر، فرما برداری کے بغیر، اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم سود بھی کھائیں ہم مسلمان بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز بھی نہ پڑھیں ہم مسلمان ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم قبروں پہ پٹک پٹک کے سر سجدہ کریں اور اعلان کریں ہم مسلمان ہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ بول اللہ تعالیٰ قبروں پہ چراغ جلائیں، قبروں سے منتیں، قبروں سے مرادیں، غیر اللہ کی عبادتیں، اور چیخ چیخ کے کہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ عید میلاد کے نام پہ دھوم مچا کے رکھے، گانے بجانے کی، لوگوں کو اسلام سے روکے، لوگوں کو اللہ کا کلام نہ سمجھائے، مسلمانوں یہ ہو نہیں سکتا۔ بولا اللہ تعالیٰ اگر تم اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے آؤ اسلام کو فالو کرو۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا، پھر اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج ذرا دل پہ ہاتھ رکھے سوچو، کیا ہمارے کاروبار میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے جائیداد کے بٹواروں میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے پردے میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، اولاد کی تربیت کرنے میں اسلام ہے؟ کیا ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہمارے طلاق، ہماری میتوں میں اسلام ہے؟ اور اگر ہے تو اللہ کی قسم خوش ہو جاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ کہاں اسلام جھلکتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، کہاں ہے جھلکنا اسلام کا؟ اگر ہم یہ سوچ رہے نا کہ ختنہ کیے، عقیقہ کیے، ولیمہ کیے، جنازہ پڑھائے، نکاح پڑھائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے اور ہو گیا اسلام، تو اللہ کی قسم پھر ہم سے بڑا شیطان کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں بول رہی، یہ رب رحمان کے الفاظ ہیں۔ جب تک تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تم میں اور شیطان میں کوئی فرق کہاں ہے؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ۔ ہم سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ کون ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 5 بار اذان سن کے بھی دل مردہ ہو گئے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، نہ رشتوں کی اہمیت سمجھ میں آئی، نہ دنیا داری سمجھ میں آئی، نہ قبر سمجھ میں آئی، نہ قیامت سمجھ میں آئی، اور یہ رمضان بھی بس یوں ہی گزر گیا۔ اللہ تو ہمیں اس کی توفیق نہ دینا، توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ آگے بتاؤ، 8ویں پارے میں جو چال اللہ نے شیطان کی بتائی ہے نا، آگے
दिल दहल जाएगा। एक तो अल्लाह जिन्नात और इंसान दोनों मिलाया और कहा जो अल्लाह उसके रसूल को फॉलो नहीं करता, हर मामले में सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, कारोबार से लेके घर तक, घर से लेके कब्र तक, शैतान बाकायदा धमकी दे के सुलाएगा। हमारे कानों तक वो बात पहुंचने नहीं देगा जो पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी था, है ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि मक्का की गलियों में उस वक्त इस्लाम फैला जब शराब पानी की तरह पी जा रही थी, जब आदमी की कोई लिमिट, कोई मर्यादा, कोई तमीज, कोई तहजीब नाम की चीज नहीं थी। बच्चे पैदा होते, अगर बेटा होता रख देते, बेटी होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। अगर कोई पैसे वाला है तो फिर वो लौंडियां खरीद लेता जो सारी रात इसके लिए नाचती गाती, शराब पिलाती, इसका दिल बहलाती, और इसी को ये लोग बहुत बेहतरीन जिंदगी समझ रहे थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत लेके खड़े होते हैं, तौहीद का नारा, एक अल्लाह का नारा कुफार मक्का को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतने दुश्मन खड़े हो गए चारों तरफ से। किसी शैतान की क्या जरूरत, ये इंसानी शैतान थे जो इस्लाम से रोक रहे थे। वो अल्लाह ताला क्या थे वो शैतान, हर एक के रोकने का तरीका देखो अलग अलग था। आओ मैं कुछ एक दो तरीके आपको बता के आगे बढ़ जाऊं। कैसा था, है ना। हर एक आदमी था, इसका नाम था नजर बिन हारिस। नजर बिन हारिस का किस्सा बड़ा मशहूर है इस्लाम के अंदर। ये अरब के लोगों से कहता है, ऐ कुरैशियों, ऐ अरब के लोगों, तुम पर एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी आफत मंडला रही है जिसका तोड़ तुम अभी तक नहीं पेश कर सके। नऊज़ बिल्लाह, वो आफत, वो मुसीबत किसको कह रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। भरी महफिल में खड़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करता है कि ऐ कुरैश के लोगों, याद करो जब मोहम्मद जवान थे, तुम्हारे पसंदीदा शख्सियत थे, तुम्हारे हीरो थे। और जब मोहम्मद बूढ़े हो गए, कनपट्टियों से सफेद बाल दिखाई देने लगे, और जब मोहम्मद ने ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, तुम खड़े हो गए मोहम्मद की दुश्मनी के लिए। ये कौन सी मुसीबत है? ये मोहम्मद, ये इस्लाम का जादू आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐ कुरैश के लोगों, मैंने देखे हैं बड़े बड़े जादूगर, उनकी उल्टी सीधे फूंक झाड़ फूंक, मोहम्मद जादूगर भी नहीं लगता है। मैंने देखा बहुत सारे नजूमियों को उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, लोगों को भविष्यवाणी बताते हुए, लेकिन मोहम्मद नजूमी भी नहीं लगते। मैंने देखा पागलों को बहकी बातें करते हुए, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद तो पागल भी नहीं लगते। ये ऐसी मुसीबत हम पे आ गई है, इसका तोड़ हम पेश नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे समझ के बाहर। फिर नजर बिन हारिस गया, एक दूर दराज एक मुल्क था, उसका नाम था हीरा। वहां वो गया और वहां से इसने बादशाहों के वाकयात सीखे, अस्फदयार और रुस्तम के किस्से सीखे, और ये आया मक्का हीरा से।
اس نے لونڈیاں پال رکھی تھی. اگر کسی کے بارے میں شک ہوتا کہ یہ محمد کی طرف مائل ہو رہا ہے, محمد کے دین کی طرف اس کا جھکاؤ ہو رہا ہے, اب وہ لونڈی اس کے پیچھے لگا دیتا, اب وہ لونڈی اس کو ناچ گانا مستی میں ایسا الجھائے رکھتی, اس کو کھلاتی, اس کو پلاتی, اس کے سامنے ناچ گانے کی رنگینیاں پیش کرتی, یہاں تک کہ اسلام سے اس کا دل ہٹ جاتا. اس کو لگتا کہ یہی تو زندگی ہے اصل میں, جوانی, ناچ گانا, لونڈی, شراب, زنا, اور کیا چاہیے زندگی کے لیے, اور کیا چاہیے. یہ آج سے نہیں, آج سے نہیں. آپ کو پتا ہے جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, یہودیوں نے اس وقت قسم کھائی تھی, قسم ہے آج کے بعد تمہارے اندر ایک بھی ماں ایسی ہم نہیں رہنے دیں گے جو ایک اور صلاح الدین کو پیدا کر سکے. ایک اور صلاح الدین کو پیدا کرنے والی ماں ہم چھوڑیں گے نہیں تمہارے بیچ میں. اور دیکھ لو کہ آج ان کی قسم پوری ہو گئی. آج کوئی ماں ایسی نہیں بچی ہے شرم حیا والی جو صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان, اورنگزیب, محمود غزنوی یا ہمارے صحابہ کرام حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابیات کو جنم دے سکے, ویسے بہادروں کو جنم دے سکے. کہاں بچی ہے ہماری مائیں, بتا دو. قسم کھائی تھی ایک بھی ماں ایسی نہیں چھوڑیں گے جو ایک اور صلاح الدین کو جنم دے سکے. کیسے کیسے انہوں نے پورا کیا اپنا یہ ٹارگٹ, وہی جو آج سے 1000 سال 1500 سال پہلے نظر نے کیا تھا. ایک لونڈی اس پہ مسلط کر دو, اس کے پیچھے لگا دو, ساری رات ناچ گانے میں مصروف کر دو نوجوانوں کو. نہ پھر ماں رہے گی, نہ بیٹا رہے گا, نہ جوانی رہے گی. یہی کچھ کیا تھا نظر بن حارث نے. آج بھی وہی ہے. ماں الگ ٹک ٹاکر ہے, بیٹے الگ ٹک ٹاکر ہے. بیٹیاں کا تو پوچھو ہی مت, ساری رات جاگتے جاگتے گزر جاتی ہے, آدھا دن سوتے سوتے گزر جاتا ہے. جس کو بھوک لگی وہ 2 انڈے ابال لیتا ہے یا میگی بنا لیتا ہے. بس چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. اذان سنائی دی, کانوں تک سنائی دی, لیکن کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی نماز کو جانے کی. اللہ اکبر. یہ ہماری زندگی ہے. یہ تو تھا باہر کی حالت نظر بن حارث کی. باقاعدہ مقابلہ لگا لیا کہ جتنا اچھا اللہ کے رسول بولیں گے اس سے اچھا میں بولنے کی کوشش کروں گا. اور جا کے قصے کہانیاں سیکھ کے آ رہا ہے. یہ انسانی شیطان برا لگتا ہے جو اسلام کی راہ میں آپ سے مقابلہ لگا لے. وہ انسانی شیطان کا ذکر چل رہا ہے نا. اب پڑوسی سب سے بڑا شیطان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, پڑوسیوں کی بھی کیا اہمیت ہے, دیکھو کیا انداز تھے ستانے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر والے پڑوسی کے بارے میں ہم بات کریں گے, ابو لہب کی. ابھی ادھر والا پڑوسی ابو جہل, اس کی بات بعد میں ہوگی انشاءاللہ. پہلا دن تھا اسلام کی دعوت کا, پہلا دن. بس پہلے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھا اور کہا, اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر محمد کیا بولتا ہے, اس کی بات کا جواب کیا دینا ہے. لیکن ابو لہب کو سب سے پہلے سمجھ میں آ گیا. ابو لہب سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے اور ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے, محمد ابھی اس سے تجھے معلوم ہوگا. پہلا پتھر اٹھانے والا, پہلا دشمنی کا اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
روز روز تو کھانا پکتا بھی نہیں تھا اللہ کے رسول کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. چولہے پہ ہانڈی چڑھی ہے، پک رہی ہے، اور یہ ابو لہب نشانہ لگا کے گندی بچے دانی جانور کی ہانڈی میں پھینک دیا. اب اس زمانے میں ایسے باؤنڈری وال گیٹ تو تھے نہیں، کھلے کھلے گھر ہوتے تھے. گندگی ایسے ہانڈی میں پھینکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لکڑی سے گندگی اٹھاتے اور لا کے وہ گندگی بھی اور وہ ہانڈی بھی باہر پھینکتے اور کہتے اے لوگوں، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسے پڑوسی ہے، کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ نماز نہ گھر میں پڑھ سکتے، نہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی جا سکتی. اتنے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کو بتاؤں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. اس سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، عتبہ اور عتیبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم. ادھر 2 بیٹے ابو لہب کے، ادھر 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب نکاح پڑھانے کا رواج نہیں تھا، جو رواج تھا اس حساب سے شادی ہو گئی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اپنے بیٹوں سے کہا دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دے. دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. کیوں؟ جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ باپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا اور کوئی جرم نہیں تھا. یہ دیکھو انسانی شیطان کیسے ہوتے ہیں، ذرا دیکھ تو لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر نبی کے لیے لِكُلِّ نَبِيٍّ جَعَلْنَا، ہر نبی کے لیے ہم نے بنا دیا. اب جب نبی کے لیے بنا دیا تو نبی کے فالوورز کے لیے بھی ایسی ہی آزمائشیں ہیں. قرآن کا اعلان ہے، سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہوا. عبداللہ کا چھوٹا سا بچہ. جب بیٹے کا انتقال ہوا، دوڑا ابو لہب جا رہا ہے. خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے اپنے ساتھیوں کے پاس، اور جا کے کہتا ہے میرے ساتھیوں سنو، محمد کا بیٹا مر گیا. ابھی میں آپ کو بتائی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے، بیٹوں کو رکھ لیتے، بڑی اہمیت تھی بیٹوں کی. اب نہ محمد، ابتر دم کٹا ہوا جانور ہو گئے ہیں، نام لینے والا کوئی نہیں بچا محمد کا. اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن میں اس کو ابتر بنا کے رہوں گا. اے نبی تم نہیں، بیٹا مرا تو کیا ہوا، تمہارے نام کو میں قیامت تک زندہ رکھوں گا. بولا اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ رکھوں گا. یہ کیسے پڑوسی ہیں. اولاد ہماری مر گئی ہے اور خوشی میرے پڑوسی کو ہو رہی ہے. میری ماں اور بہنوں، ایک انسان کی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے موت تک جتنی آزمائشیں آنی ہیں، جتنی مصیبتیں آ سکتی ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی. محبوب بیوی کا موت، اولاد کی موت، بیٹیوں کی طلاق، غربت، یتیمی، بھوک، ساتھیوں کی موت، کاروبار میں نقصان، جتنے آتے ہیں مشکلات، ہر مشکل، ہر تکلیف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی.
کو بھی آئیں گی. ہر قدم پہ انسانی شیطان تم کو ستائیں گے. طلاق کوئی آسان بات ہے کیا؟ آسان بات تو نہیں ہے. اس دل سے پوچھو، اس کے ماں باپ کے دل سے جس کی بیٹی بیٹا کی طلاق ہو گئی ہے. صبح کا پتہ نہیں، رات کا پتہ نہیں، زندگی آنسوؤں میں گزر جاتی ہے. اولاد کی موت کیا ہوتی ہے پوچھو اس ماں باپ سے جنہوں نے اپنی اولاد کو کھویا ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا بوجھ اس جنازے کا بوجھ ہوتا ہے جو باپ اپنے کاندھوں پر اپنی اولاد کا اٹھاتا ہے. نہ ہم کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جس میں ہم پورا نہ اتر سکے. اللہ ہماری اولاد کی حفاظت پر آمین ثم آمین. یہ زندگی ہے، یہ آزمائشیں ہیں بولا اللہ تعالیٰ. یہ انسان نما شیطان جب تو کھڑا ہوگا اللہ کی بات سننے کے لیے قدم قدم پر، کبھی پڑوسی بن کے، کبھی باہر کمپٹیشن، کبھی گھر کے اندر، کبھی پڑوسی، ہر جگہ مقابلے ہی مقابلے ہوں گے بولا اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں ان مقابلوں پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے اس سورے کے اندر، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے. یہ تو نبی کے فالوورز کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی خاص کر کے صرف وہی باتیں لائی ہوں جو انسان اور شیطان اور انسان مل کے چل رہے ہیں، مل کے چل رہے ہیں. تکلیف صرف شیطان نہیں دیتا، تکلیف ہمارے اپنے دیتے ہیں. تکلیف دینے کے لیے شیطان حاضر نہیں ہوتا، ہر کسی کو شیطان نہیں لگتا. تکلیف ہمارا پڑوسی ہم کو دیتا، ہمارا رشتہ دار ہم کو دیتا، ہماری اولاد ہم کو دیتی ہے، ہمارا سگے بہن بھائی ہم کو تکلیف دیتے ہیں. وہی تو قرآن ہم سے پیش کر رہا ہے. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے نا، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ بات آج غور سے سمجھ لو. اس کو اسلام سے محبت ہو جاتی ہے. یشرح صدرہ للاسلام. اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے. برا اللہ تعالیٰ تنگ سینے کو کیسے؟ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام
لیے کھول دیتا ہے. آج ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, کیا ہمارے کاروبار میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے جائیداد کے بٹواروں میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے پردے میں اسلام ہے؟ کیا ہمارے دیکھنے میں, بولنے میں, سننے میں, اولاد کی تربیت کرنے میں اسلام ہے؟ کیا ہماری شادی, ہمارے بیاہ, ہمارے طلاق, ہماری میتوں میں اسلام ہے؟ اور اگر ہے تو اللہ کی قسم خوش ہو جاؤ کہ تم مسلمان ہو. کہاں اسلام جھلکتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح, کہاں ہے جھلکنا اسلام کا؟ اگر ہم یہ سوچ رہے نا کہ ختنہ کیے, عقیقہ کیے, ولیمہ کیے, جنازہ پڑھائے, نکاح پڑھائے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے اور ہو گیا اسلام, تو اللہ کی قسم پھر ہم سے بڑا شیطان کوئی نہیں. یہ میں نہیں بول رہی, یہ رب رحمان کے الفاظ ہیں. جب تک تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تم میں اور شیطان میں کوئی فرق کہاں ہے؟ پوچھا اللہ تعالیٰ. ہم سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ کون ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں, دو نہیں, 5 بار اذان سن کے بھی دل مردہ ہو گئے. ہر سال رمضان آتا ہے, گزر جاتا ہے, نہ رشتوں کی اہمیت سمجھ میں آئی, نہ دنیا داری سمجھ میں آئی, نہ قبر سمجھ میں آئی, نہ قیامت سمجھ میں آئی, اور یہ رمضان بھی بس یوں ہی گزر گیا. اللہ تو ہمیں اس کی توفیق نہ دینا, توبہ کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے. اللہ اکبر. آگے بتاؤں, 8ویں پارے میں جو چال اللہ نے شیطان کی بتائی ہے نا, آگے دل دہل جائے گا. ایک تو اللہ جنات اور انسان دونوں ملایا اور کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو فالو نہیں کرتا, ہر معاملے میں صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک, کاروبار سے لے کے گھر تک, گھر سے لے کے قبر تک, بہت سستا, بہت آسان بنا کے پیش کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اولاد کا قتل کرنا, اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے, اولاد کا قتل کرنا. پوری فیملی سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے, فیملی پلاننگ سسٹم کو اس سورے میں بیان کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا انسان نما شیطان, ایک بچہ, ایک ہے ابھی نہیں, 2 ہے کبھی نہیں, 2 بچے سب سے اچھے, خوشحال گھرانہ, یہ شیطان کے دانے ہیں. یاد رکھو, یہ وہ الفاظ ہیں جس کو سب سے پہلے شیطان نے کیوں شیطان نے اس واسطے کہ یہودی کو ڈر ہے اگر مسلمان کے زیادہ بچے پیدا ہو گئے تو پھر اس کا کیا ہوگا. ہندو پنڈت کو خوف ہے کہ اگر مسلمان کی آبادی زیادہ ہو گئی تو کیا ہوگا. اس نے شیطان کے ساتھ مل کر ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا, ایک ہے تو ابھی نہیں, 2 ہے تو کبھی نہیں, 2 بچے سب سے اچھے اور خوشحال گھرانے کا رواج. یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے, بڑی چال چلی جانے والی. میری ماں اور بہنوں, اگر میڈیکلی کوئی پرابلم ہے, زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے کی, تو یہ الگ بات ہے. لیکن عورت تندرست ہے, خوبصورت ہے, توانا ہے, زندگی سے بھرپور ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے, تزوج الودود الولود, سب سے زیادہ اچھی محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. شیطان زنا کو پروموٹ کرتا ہے, زنا کو بڑھاوا دیتا ہے. ارے
जिंदगी हो, उससे नहीं, उससे नहीं। तज़व्वजुल वदूद, जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली, शौहर के इज्जत की हिफाजत करने वाली, अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाली, औलाद को पेट में उठाने वाली, औलाद को सीने से लगा के दूध पिलाने वाली, जो औलाद की खातिर अपने मेकअप, अपने लाली लिपस्टिक को छोड़ दे, अपनी सारी चीजों को छोड़ दे, बहुत ज्यादा औलाद से मोहब्बत करने वाली, शौहर के गैरत की हिफाजत करने वाली, ऐसी औरत से निकाह करो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने निकाह किया, लेकिन जाहिर है हमने वो देखा जो देखना नहीं चाहिए था। शैतान ने लगा दिया, पहले तो बच्चे ही नहीं, और अगर बच्चे हैं तो सिर्फ 2 चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए भी नहीं, और सबसे ज्यादा फिक्र कभी जायदाद की, कभी घर को सजाने संवारने की, तो कभी खुद के फिक्र की। और इस्लाम ने जो हुक्म दिया था उसका क्या फिक्र, उसका क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, अक्लमंद लोग है ना, उस गाय को, उस भैंस को, उस जानवर को खोटे से बांध के घर में नहीं रखते थे जो बच्चा देने के लायक नहीं रहते थे। जिसको बच्चे देना बंद हो जाते उसको कसाई को बेच देते। अब इसका क्या काम है? हम कहाँ, जिसको बच्चे देना बंद हो जाते उसको कसाई को बेच देते। अब इसका क्या काम? क्या भी टच नहीं करना है। क्या भी टच नहीं करना है। क्या भी टच नहीं। हम कहाँ टच किए थे? इतनी दूर तो बैठे, एलो जमीना पाओ थोड़ा दूर हट जाते, हमारी भाप से भी सांस की शायद मोबाइल बंद हो जाए। हमारी सांसों से भी इतनी दूर तो बैठे हैं, और कितनी दूर बैठेंगे। अक्लमंद लोग भैंस को भी वो खोटे से नहीं बांधते थे जो बच्चा देना बंद कर, उसको कसाई को बेच देते। यहाँ इब्लीस ने हमारी पूरी कौम को खंडर बना दिया, पूरी कौम को मुर्गा बना दिया। अब औरतें तो हैं घर में, लेकिन बच्चे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 1 या 2 बच्चों पे बस कहानी खत्म। अब सारी जिंदगी शौहर बीवी लड़ते लड़ते गुजार दो, क्योंकि करने को कुछ काम है नहीं अब दोनों के पास। और क्या है जिंदगी? शैतान ने इतनी खूबसूरत चाल में फंसा दिया। अल्लाह ताला शैतान के उस चाल को देखो कुरान के 8वें पारे में बयान कर रहा है। औरत एक ऐसी हस्ती है, क्या बताऊं मैं आपको, जानवर से भी ज्यादा गई गुजरी। ऐ मां, अपनी औलाद को कत्ल कोई जानवर भी नहीं कर। कभी बंदरिया ने अपने बच्चों को कत्ल नहीं किया, कभी कुतिया ने अपने बच्चों को कत्ल नहीं किया, कभी सूअर ने अपने बच्चों को कत्ल नहीं किया। बच्चों की हिफाजत के लिए मुर्गी अपने पर फैलाती है, कुतिया हर एक से लड़ती है, बंदरिया लड़ती है, मुर्गी लड़ जाती है, लेकिन वाहिद इंसान एक ऐसी माँ है जो इतने गंदे गंदे टैबलेट्स लेती है, इंजेक्शन लेती है, कभी कभी अबॉर्शन करा देती है, और कभी कभी बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको कचरे के ढेर में फेंक देती है। इतना बेदर्दी औलाद के साथ, इतना तो कोई जानवर भी नहीं करता है जितना हमने किया हमारी औलाद के साथ। हमने किया। ये शैतान की चालें नहीं तो और क्या है, पूछता अल्लाह ताला। कौन सी चाल में आ गए शैतान की? शैतान बार बार बोलता तेरा फिगर खराब होगा, बस 2 ही बच्चे अच्छे। कुछ माएं ऐसी हैं पैदा तो कर लेती है 7, 8, 9, 10 बच्चे और हवा को छोड़ देती हैं, ना तालीम ना तरबियत। इस्लाम में वो भी मंसूर नहीं।
एक माँ की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, याद रखना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आओ अल्लाह की तारीफ की तरफ बोलता अल्लाह ताला, आओ अल्लाह की कुरान की तरफ, अगर नहीं तो फिर गए काम से। अब यहाँ पे देखो, जब बात चल रही है शरीयत की, जब बात चल रही है अल्लाह के रसूल के इताअत की, जब बात चल रही है ज्यादा बच्चे पैदा करने की, तो मैं कुरान की वही आयत आपके सामने पेश करूंगी जो अल्लाह ने सूरे अनआम में कहा। एक बार फिर अल्लाह ने उस वाक़े को जिक्र किया जो पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं, आज लेकिन उसके माने बदल गए। आज क्या माना है उस वाक़े के? कौन सा वाक़या? अल्लाह ताला 8वें पारे में कहता है, जब मैंने आदम को पैदा किया, इब्लीस से कहा, अरे इब्लीस तू आदम के लिए सजदा कर। इब्लीस ने इनकार किया। अल्लाह ने पूछा, अरे इब्लीस, जब मेरा हुक्म था तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसको मिट्टी से बनाया। जरा गौर से देखो, पहले पारे से ये वाकया सुनते आ रहे। एक बार फिर अल्लाह ने सूरे अनाम में बड़ी तफसील के साथ इस वाकये को पेश किया। क्यों? गौर से देखो, अल्लाह कहता है, अल्लाह के हुक्म के आगे इब्लीस ने अपनी राय, अपनी मर्जी को बयान किया। एक बार जब अल्लाह का हुक्म है किसी मामले में, तो अपनी मर्जी, अपनी राय, अपनी ख्वाहिश, अपनी मूड रखे तरफ। अल्लाह का हुक्म है, बात खत्म हो गई। ये अल्लाह के हुक्म में कीड़े निकाल रहा है कि देखते हैं अल्लाह का हुक्म कैसे हो सकता है, मैं तो आग से बना हुआ हूं। यहाँ पे हमारी भी यही राय रहती है, नमाज पढ़ो ना, आदत नहीं है जी नमाज की। रोजा रखो ना, ताकत नहीं है नमाज की। शादी कर लो ना, शरीर हैसियत नहीं है। शादी जल्दी कर लो, हैसियत नहीं है। बच्चे ज्यादा पैदा कर लो, अरे वो कौन करेगा, अभी तो ये हालात है, अभी ये हालात है। अल्लाह और उसके रसूल के आगे अगर किसी ने अपनी राय पेश की, उसका भी वही मकाम है, वही सजा है जो इब्लीस की सजा है। याद रखना, जो अल्लाह के आगे सर उठाता है, अल्लाह कहता है वही सजा। कौन सी सजा? मैं जहन्नम को हर इब्लीस और अपनी राय चलाने वाले से मैं भर दूंगा, बोला अल्लाह। शरीयत क्या कहती है, हम अपना दिमाग नहीं लगाना, समझ में आए समझ में ना आए, अल्लाह तेरा हुक्म है बस, आमन्ना व सद्दक़ना। अरे हमारे रब, हम ईमान लाते हैं। खजाने में ना एक बड़ी कीमती अंगूठी थी अकबर के खजाने में। इसने सारे वजीरों को कहा कि इस अंगूठी को फोड़ दो, तोड़ दो। देखते हैं अंगूठी की, हीरे की पहचान किसी को है क्या? नहीं है। इम्तिहान ले रहा है बादशाह। हर वजीर ऐसे ऐसे देखता है और कहता है कि बादशाह सलामत, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, इसको नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता। देखते हैं किसको हीरे की पहचान है, किसको नहीं। लेकिन जब अंगूठी बीरबल के हाथ में आई, फौरन 2 टुकड़े कर दिया। अब बादशाह को इतना गुस्सा आता है, मैं तो आजमाने के लिए दे रहा था, क्या इतनी कीमती अंगूठी बीरबल तेरी समझ में नहीं आई? तो बीरबल कहता है, बादशाह हुजूर, बेशक अंगूठी कीमती थी, लेकिन तेरा हुक्म उससे ज्यादा कीमती था मेरे लिए। अंगूठी कीमती थी, लेकिन तेरा हुक्म उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए कीमती था। अल्लाह का हुक्म था सजदा कर आदम के लिए,
हमेशा का मरदूद कहलाया। अल्लाह कहता है ज्यादा बच्चे पैदा कर, और लाके वहां पे हम अपना दिमाग डाल देते, नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे ना तो ये होता है, वो होता है, वो होता है। आज देख लो, हर 4 में से एक औरत को कैंसर, हर 4 में से एक औरत को या तो ब्रेस्ट कैंसर या तो बच्चेदानी का कैंसर। औरत की छाती बनी ही इसलिए है ताकि वो बच्चे को दूध पिलाए, बच्चेदानी बनी ही इसलिए है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। और जब ये दोनों काम करती नहीं है उस हिसाब से जो करना चाहिए, फिर वो चीजें सड़ जाती हैं बदन के अंदर, मानो रख 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 के काम में नहीं लेके जैसे कोई चीज खराब हो गई वैसे। कौन है इसका जिम्मेदार? अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह तेरा डर हमारे दिलों में पैदा कर। आमीन सुम्मा आमीन, है ना। आगे अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है, अब आओ जादू के चैप्टर की तरफ। सूरे अनाम की आयत नंबर 128 में अल्लाह कहता है, बड़ा खूबसूरत जादू का बयान है। आखिर वो कौन से काम है जो जिन्नात और इंसान मिल मिल के कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और क़यामत तक करते रहेंगे। जबकि इस्लाम में आए हो तो आजमाइशें तो होंगी, बोला अल्लाह ताला। इंसानी शैतान खड़े होंगे तेरा रास्ता रोकने के लिए कदम कदम पे, और अल्लाह ने अपने नबी को अपने नबी को रोल मॉडल बना के भेजा कि देखो कैसे कैसे सताए, लेकिन क्या इन्होंने ईमान को छोड़ा? नहीं छोड़ा। 128 में अल्लाह क्या कहता है, देखो, या माशरल जिन्नी खदिस्तक्सरतुम मिनल इंसी। आह क्या कुरान के अल्फाज है। अल्लाह क़यामत के दिन जिन्नात की जमात से मुखातब हो के कहेगा, तसव्वुर करो, ऐ जिन्नात की जमात, तुमने बहुत 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 बहकाया इंसानों की जमात को। इनसे बहुत ज्यादा बहकाया तुमने इंसानों को। तो जिन्नात के वो इंसान जो दोस्त हुआ करते थे दुनिया में, वो उठ के खड़े होंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, जिन्नात ने हमसे मदद ली, हमने जिन्नात से मदद ली, हम एक दूसरे के मददगार थे तेरे नेक बंदों को बहकाने में, तकलीफ देने में। अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर, या माशरल जिन, ऐ जिन्नात की जमात, इतना खूब बहकाया तुमने, खूब बहकाया इंसानों को। इन जिन्नात कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमने इंसानों के साथ मिल मिल के, सिर्फ जिन्नात की जमात नहीं है, इंसानों की भी जमात पूरी पूरी मदद कर रही है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला कहेगा, तुम दोनों ही जाओ जहन्नम के अंदर। और जब ये जहन्नम में जाएंगे, कुरान की दूसरी आयत नेक्स्ट अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, या माशरल जिन्नि वल इंस, जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या मेरे रसूल तुम्हारे पास नहीं आए थे, तुमको समझाते, तुमको बहलाते, तुमको बताते अल्लाह का कलाम क्या है? क्या नहीं आए थे? क्या जवाब होगा हमारे पास? क्या जवाब होगा इस बात का? अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज्यादा कौन से काम है जो जिन्नात और इंसान मिल मिल के कर रहे हैं दुनिया के अंदर? पहले नंबर पे है शिर्क। शिर्क के अड्डे, जितने दुनिया भर में शिर्क चल रहा है, चाहे वो कोई कब्र की पूजा हो, चाहे मूर्ति की पूजा हो, चाहे दरख्त की पूजा, चाहे चांद की पूजा, चाहे सूरज की पूजा, चाहे कोई भी गैरुल्लाह की इबादत, उसके पीछे शैतान है, याद रखें, शैतान है। जितने शिर्क के अड्डे चल रहे हैं, सबको चलाने वाले पीछे शैतान है।
कल का तो जबरदस्त जिन्नात का सबक आने वाला है। आपको अकल हैरान रह जाएगी कि जिन्नात इंटरनेट कैसे चला लेते, कौन इनकी मदद कर रहा है इंटरनेट चलाने में। दुनिया तक सैटेलाइट के जरिए बुराई पहुंचाने में ये कैसे मदद कर रहे हैं। आज आओ सुन लो, जितने शिर्क के अड्डे चल रहे हैं, चलता फिरता मुशरिक ये शैतान का सबसे बड़ा दोस्त है। जरा देख लो, एक वाकया बताती हूँ और से सुनना, सारा खेल समझ में आ जाएगा। एक गांव में ना एक आदमी था, लोग उसको बड़ा अल्लाह वाली मानते थे, अल्लाह वाली वली अल्लाह मानते थे, ये अल्लाह का वली है, पीर है, बुजुर्ग है, ये है वो है। आज यहाँ तो कल खाने काबा में दिखता था। अब उस जमाने में तो प्लेन भी नहीं था, कैसे दिखता होगा खाने काबा में। कभी हवाओं में उड़ रहा है तो कभी पानी पे चल रहा है, अजीब अजीब करामतें दिखाता है। हम सारे लोग उसको बड़ा मानते थे, बड़ा मानते थे। पीर जी हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, ये मुश्किलें हैं, ये मुसीबतें, और सबकी दूर भी करता था वो, नौज़बिल्लाह। अब एक दिन वो मर गया। जैसे ही वो मरा, गांव के लोग उसके बेटे को गद्दी पे बिठाते हैं कि तुम पीर के बेटे हो, आज से तुम ही हमारे पीर बन गए, तुम अल्लाह के वली हो, हम तुमसे मांगेंगे जो मांगेंगे। ये कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह वली होता है, मैं क्या वली। लेकिन लोग मानते नहीं है, बना देते हैं। अब एक दिन इसके पास जिन आता है और कहता है भाई मुबारक हो, लोगों ने तुम्हें अल्लाह का वली समझ लिया है, अब आओ क्या खाने काबा का दीदार करा लाऊं तुमको। तो ये आदमी सोचता है खाना काबा कौन नहीं जाना चाहेगा। हाँ तो मेरी हथेली पे बैठ, मैं अभी 5 मिनट के अंदर अंदर इधर हथेली करूंगा और खाना काबा तक पहुंचा दूंगा, बैठ इधर। ये चढ़ के बैठ गए हथेली पे। अब जिन उसको लेके चला हवा में। जैसे ही एक जंगल में पहुंचा, जिन ने उसको उतार दिया और बोला ये वो जंगल है, यही वो जगह है जहां पे तेरे बाप को मैं लाता और तेरा बाप मुझे सजदा करता। अब अगर मुझे सजदा करेगा तो मैं आगे खाने काबा तक तुझे ले जाऊंगा, और अगर तू मुझे सजदा नहीं करेगा यहीं पे दफन कर दूंगा। बोल क्या इरादे। यह आदमी सोचता है अगर मैं जिन की बात मान लेता हूँ, लोगों की वाहवाह है, तारीफें हैं, पीरी का मकाम है, दौलत है, शोहरत है, नेम फेम मनी है, और अगर पीर की बात नहीं मानता हूँ, जिन की बात नहीं मानता हूँ, सीधे सीधे मौत है। भाई मरना कौन चाहेगा। हाँ ठीक है, सजदा कर लेता है। अब आगे चलकर उसको जिन खाने काबा तक पहुंचा देगा। ये कौन सा ईमान है बता दो। एक तरफ जिन्नात के लिए सजदे, दूसरी तरफ खाने काबा का तवाफ पे तवाफ, तवाफ पे तवाफ। पहले अपने शिर्क को तो छोड़, वो अल्लाह पहला काम, पहला बिजनेस, पहला कारोबार, पहला धंधा जो इंसान और शैतान के बीच में दोनों मिल के चलाते हैं, वो हर शिर्क का सबसे बड़ा अड्डा है, याद रखना। और जितने शिर्क के अड्डे हैं वहां पे शैतान की भरमार होती है, शयातीन ही शयातीन, शयातीन ही शयातीन। अगर हमारी आंखें देखने के लायक हो जाए ना, तुम हर जगह शैतानों को देखोगे। दूसरा बताओ, जो जिन्नात और इंसान दोनों मिल के बिजनेस चल रहा है, या दोनों मिल के कर रहे हैं, वो अब जरा गौर से देखो वो कौन सा काम है। दोनों मिल के कर लो,
और इसका आधा सबक आपको आज के 8वें पारे में आ रहा है, आधा इंशाअल्लाह कल के पारे में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, शादी जल्दी करो, 3 वक्तों में 3 कामों में देर नहीं करना चाहिए। एक, लड़की जब बालिग हो जाए शादी कर दो। दूसरा, मैयत तैयार है दफन करने में जल्दी कर दो। तीसरा, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने में जल्दी करो। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारी शरीयत कहती है शादी जल्दी करो, गवर्नमेंट कहती है नहीं 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 18 साल में करोगे तो सीधे सीधे जेल हो जाएगी। 18 साल से पहले लड़की अगर जिना कर लेती है, सारे हाई स्कूल की 90% लड़कियां प्रेग्नेंट रही, याद रखो। कितने कितने टेस्ट, हर गांव के टेस्ट होते रहे, 90% लड़कियां बालिग होने के बाद, इतना तो शादीशुदा औरतों को नहीं मालूम होगा औलाद नहीं होने के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना, जितना ना आज हमारी 8th 9th 10th की बच्चियों को मालूम हो गया है। क्यों क्यों क्या है इसकी जिम्मेदारी? इस्लाम कहता है शादी जल्दी करो, शरीयत और गवर्नमेंट कहती है 18 साल से पहले किए तो जेल है। और माँ बाप ना गवर्नमेंट की सुनते ना शरीयत की सुनते, ये अपनी औलाद की सुनते। औलाद बोलती अभी तो तालीम है, अभी करियर है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, क्या इतनी जल्दी शादी करके बैठ जाए कैसे? या तो औलाद की सुनेंगे या अपने दिल की सुनेंगे, किसी की नहीं सुनते माँ बाप की। और शादी से पहले पहले न जाने क्या क्या होते रह रहा, इससे कोई समझदार इंसान गाफिल नहीं है, गाफिल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अगर 12-13 साल में हम शादी करते हैं तो मुल्क के कानून के हिसाब से मुजरिम होंगे, तो 18 में कर दो ना, बात खत्म हो गई। 18 में कर दो, 28 तक 30 तक जाना जरूरी है क्या? अच्छा 28-30 तक जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे रहते, माँ बाप मर जाते, ना औलाद की खुशियां देखी, ना जिंदगी को समझा, कुछ नहीं, माँ बाप खत्म। अब आखिर ये टॉपिक आया कहां से, एक बात बता दो, पहले अगर शादी देर से होती है तो शादी होती नहीं है, और अगर होती है तो शादी चलती नहीं, तलाक लेके वापस आ जाती। क्या वजह है? आओ 8वें पारे से इसकी वजह पूछते हैं। जब किसी भी लड़की और लड़के की शादी में देरी होती है ना, जिन्नात की उस पे नजर लग जाती है। ये जिन्नात की नजर क्या होती है? सूरह रहमान में आ रहा है, लम यतमिसहुन्ना क़ब्लहुम इंसुन वला जान। जिन्नात की नजर खाने को भी लगती है, हड्डी खा के फेंके हो, फेंकने की नीयत से अब दोबारा उठाना नहीं खाने के लिए, जिन्नात ने उसको देख लिया है कि वो हड्डी फेंकेगा तो मैं खाऊंगा, डबल नहीं उठाना, डबल नहीं उठाना। हम पढ़े तीसरे पारे की तफसीर में, हमने सुना दौलत रखे हैं जिन की नजर, जिन दौलत गायब कर देता है, खाने पे जिन्नात की नजर। लड़की हो या लड़का, जब शादी में देरी हो जाए, जिन्नात की नजर उस पे आ जाती है। अब इसके बाद या तो शादी होती ही नहीं है, हो ही नहीं पाती है, और अगर चलो हो भी गई अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह से, वो चलती नहीं। अगर किसी तरह से शादी भी हो गई, चल भी गई, शैतान एक और शिर्क में मुब्तला कर देता है कि औलाद का कातिल बना देता है। कहां से कहां लेके जा रहा है, शैतान तो पीछे नहीं छोड़ रहा है। हो गई शादी, रिश्ता भी चल गया, दोनों हंसी खुशी चलो कैसी भी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अब औलाद का कातिल बना दिया शैतान ने। औलाद का कत्ल करना कुरान के 8वें पारे के हिसाब से ये भी शिर्क में आता है, याद रखो। जरूरी नहीं है
दरगाहों पे जाके चादर चढ़ाना, मूर्तियों की पूजा करना, बलि देना, यही शिर्क है। औलाद का अगर कत्ल कर रहे हैं, जानबूझ के औलाद पैदा होने से रोक रहे, इससे बड़ा शिर्क कोई नहीं है। ये मेरे नहीं, ये 8वें पारे के अल्फाज है। क्योंकि अल्लाह कहता है अल्लाह उसके रसूल की तारीफ करो, और अल्लाह उसके रसूल का हुक्म ये है तज़व्वजुल वदूदल वलूदा, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली औलाद से निकाह करो। मेरी माँ और बहनों, क्या है देखो आजकल की लड़कियां, शादी क्यों नहीं होती है, चलती क्यों नहीं है, उसकी एक बड़ी वजह बताती हूँ। जिन्नात की नजर आई क्यों उस पे, ये ना आईब्रो बने हुए हैं। आईब्रो बनाने वाली पे अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आईब्रो बनाना इस्लाम में हराम। शेव भी नहीं दे सकते, नहीं हम शेव दे रहे, सिर्फ अजीब अजीब बहाने बोलते। जूड़ा बनाने वाली पे अल्लाह के रसूल ने लानत की है। जूड़ा नहीं बना सकते, शैतान की कुर्सी है वो। ऐसे गर्मी से यहाँ पे बना सकते, लेकिन ऐसे नहीं। दांतों की क्लिप किसी ने लगाया, शैतान, लानत है उसके लिए, अल्लाह उसके रसूल। एक जवान लड़की का होलिया तस्वुर करो, आईब्रो उसने बनाया हुआ है, दांतों में क्लिप बिठाया हुआ है, जूड़ा बनाया हुआ है, खुशबू भर भर के उसने लगाई हुई है, जिसपे अल्लाह उसके रसूल की लानत है। और उसके बाद इसका निकाह होता है, पहले से जिन्नात की नजर में है, अब ये हुलिये के साथ जिन्नात की और नजरों में आ गई। अब इसके बाद उम्मीद ये रखते हैं कि हमारी शादी, आपा दुआ करो अल्लाह बरकत दे। लो, कौन सी भी दुआ काम नहीं आएगी। पूरे सूरह बकरा पढ़ लो, ऐसी शादियों में जाके कोई बरकत की दुआ काम नहीं आएगी। अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करो, ये हमारी जिंदगी में बरकत का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा। हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, ऑनलाइन वालों से बड़ा डिस्टर्ब किया, माफी तो बनती है, लेकिन इसकी क्या वजह है ये मेरी वजह समझ में नहीं आई। अब नीचे जाके देखना पड़ेगा कि क्यों इंटरनेट बार बार बंद हो रहा था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शैतान का जब भी जिक्र आएगा, चौकन्ना होकर बैठना, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शैतान के जिक्र पे। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन पड़ोसी अता फरमाए, अबू लहब जैसे पड़ोसी अल्लाह हमको ना दे। अल्लाह इंसानी शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, जो शैतान से बढ़कर शैतानी तकलीफ हमको पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये एक रिजवाना कोई है, बहुत परेशान है। इनका सवाल ये है कि जिन शौहर के करीब जाने ही नहीं देता, सेम इसी का तो जवाब देने की आज मैं कोशिश की 8वें पारे में, लेकिन इंटरनेट बार बार सताया, वो मेरी गलती नहीं है, सिलसिला टूटता रहा। शादी होती नहीं है और शादी चलती नहीं है। मैं बोली शादी नहीं चलती तो उसका यही मतलब है, या तो औरत को असरात है जो शौहर को करीब आने नहीं देते, या फिर शौहर को असरात है जो बीवी को करीब आने नहीं देते। इसी को ढके छुपे लफ्जों में मैंने कहा कि चलती नहीं है, शादी चलती नहीं है। और ये होता है बहुत ज्यादा उम्र में शादी करने की वजह से। याद रखना, एक एज के बाद शादी हो रही है ना, बड़ी उम्र के बाद शादी हो रही है। और दूसरा, चेहरा इतना लानती हमने बनाया हुआ है, अल्लाह उसके रसूल की लानत फटकार हमारे चेहरे पे बरसते रहती है, जिन्ना दूर जाके नहीं दे रहे। तो मेरी बहन जो भी सुन रहे होंगे, जिसका भी ये मसला है, कौन रिजवाना है ना, तो जरूरी है कि तुम अपना इलाज करवा लो एक अच्छे मुआलिज के साथ।
कोई दूसरा तरीका है नहीं सिवाय कुरान और सुन्नत की तरफ आने के। आखिर में मैं आपको 1000 बातों की एक बात ही बताऊंगी। जब जिन्नात और शयातीन के चैप्टर चल रहे होंगे, इस्लाम ने बड़ा आसान सा सिलेबस दिया है, अस्लिम तस्लम। तुम इस्लाम में आओ, इस्लाम तुमको हिफाजत की गारंटी देता है, हर शैतान से, हर जिन से, हर बुरे इंसानों से, हर बुरी नजर से। अभी हमारा नजरे बद का चैप्टर शुरू हुआ ही नहीं है। अगर तुम नजरे बद का चैप्टर समझ जाओगे ना, ऐसे पर्दा करके बैठोगे एक दूसरे से, कहीं किसी की नजर ना लगे मुझे। इतनी खराब नजरे बद होती, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ऐसे सिर्फ नजर भी किसी ने डाला ना कि इसके जैसा मेरे पास नहीं है, गए काम से, जिंदगी खराब हो रही है। इतनी तेज नजर लग रही है, इतनी तेज नजर लग रही है, इंटरनेट से ज्यादा फास्ट हो गई है नजर लगना। वो चैप्टर तो आपको समझना ही समझना है और सीखना ही सीखना है, इंशाअल्लाह। बोलो हाँ। तो ये रिश्ते नहीं होते, और होते तो नहीं चलते, याद रखो, ये देरी की वजह से। तुम आओ, कुरान और सुन्नत को फॉलो करो, कम से कम गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल में भी कर ही लेते हो, तब भी जल्दी है। इतना भी देर नहीं करना चाहिए कि पूरे मोहल्ले भर के जिन्नात हमारे ही पीछे पड़ जाए। हाँ, ये सभी के लिए है, सिर्फ यास्मीन के लिए ही क्यों भाई? ठीक है, बच्चे बड़ा सैकड़ों के हिसाब से मैसेज किए हैं। 10th और पीयूसी सेकेंड ईयर के लिए हमारे लिए रोज दुआ कीजिए। पिछली बार 9 लाख में से 4 लाख बच्चे फेल हो गए थे 10th में। अभी डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है बच्चों को। मेरे बच्चों, कभी डरना नहीं है। कल भी बताए थे हम आपको, आप हमारी कौम का मुस्तकबिल हो, हमारे लिए कीमती सरमाया हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। तुम फेल हो तो भी हमारी औलाद हो, तुम पास हो तो भी हमारी औलाद हो। बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना डाले माँ बाप। माँ बाप को इलाज की बड़ी जरूरत है। ऐसा देखना चाहते बच्चे को 100 में से 100 अपडेट, एकदम सोफे पे ऐसा बैठना बच्चा, ना जूते खराब होना, ना टी शर्ट खराब होना। 1 साल के बच्चे से उम्मीद रखते माँ बाप, एकदम बाखलाक शरीफ। अगर मदरसे में डाले होंगे बच्चे को, पहले दिन ही उन हाफिज वकील अहमद उमरी दिखना, पहले दिन ही मदरसे के। नहीं, मदरसे में जा रहा बच्चा, हाँ तो क्या वो मदरसे में जा रहा, तो शरारत करने दो बच्चों को, फेल होने दो बच्चों को, होने दो ना। कौन सा जमीन जायदाद दुनिया लूट रही है, फेल ही तो हो रहा है 2 पेपर में, दे देगा बाद में। अब इसका यह मतलब नहीं कि मैं बच्चों को फेल होने पे उकसा रही हूँ, मैं बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रही हूँ। बेटा, ये जिंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है, आराम से दो, पास होने की कोशिश करो, टॉप करने की कोशिश करो। कोशिश के बावजूद नहीं होता है, खुदकुशी करने की, डिप्रेशन में जाने की, है ना, कोई जरूरत नहीं। तुम हमारे लिए बड़ी कीमती हो बेटा, बहुत कीमती हो तुम हमारे लिए। ऐसे 10 एग्जाम तुम पे से कुर्बान, हमारे बच्चों पे से। ज्यादा प्रेशर ना डालो बच्चों पे, ज्यादा मत डालो बच्चों पे। पास होने बहुत अच्छी बात है, जितने नसीब में है ना उतने ही नंबर लाएंगे, कोई ज्यादा नंबर नहीं लाएंगे। मुझे देख रहे हो, मैं कभी फर्स्ट नहीं आई, कभी फर्स्ट नहीं आई। फर्स्ट डिवीजन होता था, फर्स्ट कभी नहीं आई है। आज अपनी फील्ड में माशाअल्लाह 3rd बेंच पे बैठने वाले पूरा मुल्क चला रहे, पूरा मुल्क चला रहे हैं ना। कोई डिग्री वग्री नहीं, अंबानी की कोई डिग्री नहीं है, ना मोदी की डिग्री है, किसी की डिग्री नहीं। एक हमारे माए ना 3री 4थी में जाके देखो सीक्याब में रोते हुए ठहर के, उनकी फोटो लेके ना पूरे इंटरनेट पे वायरल करना दिल बोलता मेरा तो। वायरल 3री 4थी का बच्चा 2-4 मार्क्स कम लाए तो बच्चे से ज्यादा मार होते थे की वहां। मजाक लगा के रखी हो क्या? बस भी कर दो ये ओवर एक्टिंग, छोड़ भी दो ना। बोर्ड एग्जाम है, बच्चा नहीं लिखा होगा, रोजे में बच्चे जा रहे एग्जाम देने के लिए, ज्यादा प्रेशर मत डालो। जीना ताबा सिर्फ बच्चों के साथ है,
हमारी दुआएं साथ है। बेटा पूरी कोशिश करना, 1 में फेल हो, 2 में फेल हो, 4 में फेल हो, पूरे में फेल हो, कुछ नहीं, अखलाक ना जाए, ईमान ना जाए, उस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान। ईमान शैतान ना ले जाए, मार्क्स फिर मिल जाएंगे। कोई नहीं पढ़ी है मार्क्स वार्क्स की, कुछ नहीं पढ़ी है। आज याद भी नहीं है किसी को 10th में कितना परसेंटेज लिए थे, याद है किसी को? ये कौन है जी? नीट का भी चल रहा है, ठीक है, नीट का भी। नसरीन है, आयशा है, और जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाए। नीट वाले भी भेजे हैं, रोज तो सिर्फ दुआ होगी इंशाअल्लाह। हर बच्चे से यही है, आप अपना दी बेस्ट दो, अपनी पूरी कोशिश करो, और माओ और माँ बाप से खास करके गुजारिश है, हमने रिज़्क़ हलाल खिलाया, बच्चों को अच्छी तरबियत दी, अच्छी परवरिश की, अच्छी जगह उनका रिश्ता देख के शादी कर रहे हैं। अब नसीब में जितना होगा उतने मार्क्स मिलेंगे। बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालो कि खुदकुशी करने का सोचे, घर से भागने का सोचे। एक बच्चा फेल हो गया था अभी पिछले साल, ये दोस्तों के साथ गया, डिप्रेशन संभाले नहीं जा रहा था, माँ बाप क्या बोलेंगे, इसने शराब पी ली। शराब पीने के बाद उसको और समझ में नहीं आ रहा था कि माँ बाप के पास क्या वो लेके जाऊंगा घर में, नशे में, ये ऊपर से कूद के जान दे दिया। हराम पे हराम, हराम पे हराम, इस हद तक खौफ में मुब्तला ना करो औलाद को। जीने दो उनको भी, हाँ बस बेहयाई से दूर रखो, है ना, अखलाक पे ज्यादा तवज्जो दो। अल्लाह ताला हमारी औलाद को हिफाजत फरमाए, अल्लाह औलाद के आजमाइश में ना डाले ना, अल्लाह वो वक्त ना दिखा जब औलाद की वजह से शर्मिंदगी हो, औलाद की वजह से गम में मुब्तला हो जाए। अल्लाह हमारी औलाद की जान की, माल की, इज्जत की, हर चीज की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।